Hello everybody. See, now we will discuss this chapter simple equations. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इक्वेशन. व्हाट इज एन इक्वेशन दैट वी विल डिस्कस. इक्वेशंस क्या होती है, लेकिन बिफोर दैट वी मस्ट नो अबाउट द वेरिएबल. हमें पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होता है एंड वी मस्ट नो अबाउट द कांस्टेंट एंड कांस्टेंट क्या होते हैं. वेरिएबल क्या है? ये वेरिएबल टेक्स ऑन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज. वेरिएबल क्या करता है? डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज लेता है. इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड. Value is not fixed in case of the variable. Variables are denoted usually by the letters of alphabet like X, Y, Z we are saying. The value of this is not fixed this here because sometimes you are getting the value of 1, sometimes 2. हर बार value is going to change. That is the variable is there only. Means that is changeable. जो value changeable होती हैं they are known as a not fixed. Means you can say the not fixed are known as the variables is there. Means which are not fixed is there only, that is the variable. Constant means during execution of a program value remains unchanged. जो वैल्यू अनचेंज रहती है, चेंज नहीं हो, अनचेंज्ड. फिक्स्ड है, दे आर फिक्स्ड, नेवर दे आर गोइंग टू चेंज. जो वैल्यू चेंज नहीं हो, फिक्स्ड हो, दे आर नोन एज ए कांस्टेंट. जैसे नंबर्स 1, 2, 3, 4, any number you can take. These all are the constant. तो वेरिएबल क्या है? चेंजेबल. कांस्टेंट मीन्स अनचेंज, फिक्स्ड. अब नाउ क्वेश्चन ये है कि ऑन द वेरिएबल एंड कांस्टेंट, दिस इज अ वेरिएबल एंड दिस इज अ कांस्टेंट. इफ वी अप्लाइड, अगर हम इन पर कोई भी ऑपरेशन करें, ऑपरेशन इन द सेंस इज हियर मींस ऑपरेशन मींस मैथमेटिकल ऑपरेशन. मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे मींस उनको ऐड करें, एडिशन, subtraction, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन. अगर हम इनमें से कोई भी एक ऑपरेशन वेरिएबल और कांस्टेंट के ऊपर कर देते हैं, इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट कर दें या डिवाइड कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दे आर नोन एज ए, these are known as, इनको हम बोलते हैं algebraic expression. These are your algebraic expressions. These are algebraic expression. तो variable and constant, if you are going to apply any one of the operation on the variable and the constant, they change into the algebraic expression. अगर variable और constant पर हम कोई भी एक ऑपरेशन करते हैं, उन्हें ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, तो वो बन जाते हैं algebraic expressions. लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशन कि what is an equation? What is an equation? That we are going to discuss. तो इक्वेशन क्या होता है? अगर कोई भी algebraic expression, if any algebraic expression में साइन ऑफ इक्वालिटी डाल दें, मीन्स अगर x plus 2 is equal to you are writing 10, ये क्या है? साइन ऑफ इक्वालिटी. इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ इक्वालिटी. अगर साइन ऑफ इक्वालिटी आ जाता है विद द एनी algebraic expression, that is change in an equation. This is an equation. ये क्या हो गया? इक्वेशन हो गया. तो कोई भी algebraic expression, any algebraic expression become an equation if there is a sign of equality. अगर sign of equality आ गया, जैसे this one, या we can say 2x plus 3 is equal to 1, 4x minus 10 is equal to 0, 3x minus 1 over 2 plus 1 over 2 is equal to 2. These all are an equation. These are an equations. तो अगर sign of equality है, if the sign of equality is there, then you can say that algebraic expression, वो algebraic expression अगर equal का sign आ जाता है algebraic expression के साथ में, तो that is an equation. अगर साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, दैट इज नॉट एन इक्वेशन. अब देखिए कौन सी इक्वेशन नहीं होगी. लुक एट हियर. जैसे फॉर एग्जांपल ax plus 2 is greater than 3, 2x minus 1 is less than 0, 1 over 2 ax plus 10 is less than 20. These are ax minus 1 is greater than 0 or any number like 10.
these are not in equations, ये equations नहीं है, these are not in equations। तो इक्वेशन होने के लिए क्या है, साइन ऑफ इक्वालिटी, इक्वल का साइन होना चाहिए, इक्वल का साइन होना चाहिए with the variable and the constant is there on। Have a look। Okay, now अब ये कुछ स्टेटमेंट गिवन है, these are the statements are there, we are supposed to write in the form of an equation, हमें इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। स्टेटमेंट मीन्स कोई भी सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, दैट इज नोन एज एन स्टेटमेंट। तो दीज आर द स्टेटमेंट्स गिवन है, वी वांट टू राइट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, हमें क्या फॉर्म करना है, इक्वेशन बनानी है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स का 2 टाइम्स, तो एक्स का 2 टाइम्स एंड 10, 2 टाइम्स ऑफ एक्स एंड 10 मीन्स इसका मतलब प्लस 10 इज 21, ये आपका इक्वेशन बन गया। 2 टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स का 2 टाइम्स एंड मीन्स प्लस हो गया, यू हैव 10 रुपीज एंड 2, तो 10 प्लस 2 12 लाइक, तो 2x प्लस 10 इक्वल 21, दिस इज इक्वेशन। इसको देखिए, 1/3 ऑफ ए नंबर मान लीजिए नंबर, लेट द नंबर बी x, अगर मैं ये मान लू कि नंबर भी x है, यू कैन एज्यूम इन प्लेस ऑफ x, अब x की जगह a b c कुछ भी ले लो बिंदास, नो प्रॉब्लम। तो 1/3 ऑफ ए नंबर, 1/3 मीन्स 1/3 ऑफ ए नंबर, वी आर टेकिंग x, 1/3 of a number, this one, and plus 5 is 8 is equal to 8, this is an equation। इसको रीड आउट केयरफुली, एक एक वर्ड पढ़िए, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू डू, करते जाओ 1/3 ऑफ ए नंबर, इतना पहले करिए, 1/3 ऑफ ए नंबर प्लस 5 is 8 equal to 8। देखिए यहां पर, इफ यू सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 6 टाइम ए नंबर, तो नंबर मान लीजिए, लेट द नंबर भी x, कुछ भी मान लो, y मान लीजिए, z मान लीजिए, तो क्या बोला देखिए, इफ यू सब्ट्रैक्ट माइनस 10 फ्रॉम 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे किससे, 6 टाइम ऑफ ए नंबर, 6 टाइम ऑफ ए नंबर, तो x का 6 टाइम सब्ट्रैक्ट 10, you get 7, कितना मिलेगा 7। So these are your equations, these are your equations। तो अगर स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन है, स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन, यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, दिस इज द स्टेटमेंट इज गिवन, यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, स्टेटमेंट इज गिवन देयर ओनली, यू कैन राइट इन फॉर्म एन इक्वेशन। समटाइम equation will be given, they can ask to write in the form of statement, that also we will discuss, have a look। Now the equations are given, this is your equation, we are supposed to write in the statement form। देखिए, this is x minus 5 is equal to 9, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, taking 5 away, we are taking 5 away from x, x में से 5 कम किया, is equal to 9 means is gives 9, so you can write on this way only। This statement form may be changed, that is depend on individual, ये और भी different, subtract 5 from x to get 9, ऐसे भी ले सकते हैं। Similarly 5 times of x is equal to 12, you can say here 5 times of a number x, 5 times of number x is 12, you can write on this way। This statement form may be changed, ये डिपेंड कर सकती है, 5 times of x gives 12, you can write on, ऐसे भी ले सकते हैं। 3 times from the 3 times of n we are adding 7, तो add 7 to 3 times of n to get 12, so you can write on this way। So this statement form may be changed, ये state form change हो सकती है, that is depend on individual, but ये statement, this equations cannot be changed। अगर ये है add 7 to 3 times n to get 12, तो यही इक्वेशन आएगी। लेकिन अगर इफ यू आर गोइंग टू राइट दिस वन इन दिस फॉर्म, यू कैन राइट 3 टाइम्स ऑफ n प्लस 7 गिव्स 12, दैट इज आल्सो यू कैन राइट ऑन 3 टाइम्स, ऐसे भी ले सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ n प्लस 7 गिव्स 12, दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे। तो एनी हाउ यू कैन राइट ऑन इन योर ओन लैंग्वेजेस देयर। सो इक्वेशंस आर गिवन, यू कैन राइट ऑन इन द स्टेटमेंट फॉर्म।
अगर स्टेटमेंट फॉर्म गिवन है तो यू कैन राइट ऑन द इक्वेशन फॉर्म. हैव अ लुक. Yes. First of all, we will discuss the solution of an equation. हम पहले solution of an equation discuss करेंगे कि अगर हमको कोई भी equation given है तो वो कौन सी वैल्यू उसका solution होगा. Let this is your equation. मान लीजिए आपकी equation है. अब we want to know the solution. इस equation का solution क्या होगा? Solution means x की कोई भी वैल्यू जिसको रखने पर this left hand side comes equal to right hand side. अगर दोनों इक्वल आती है x की कोई भी वैल्यू, putting any value of x, you are getting left hand side is equal to right hand side. That value will be the solution of this equation. जो भी x की वैल्यू दोनों साइड को इक्वल करते हैं, मीन्स x की अब हम कोई नंबर रखते हैं, उस नंबर को रखने पर ये साइड इसके बराबर हो जाती है, तो दैट नंबर इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है. सो अगर मैं मान लीजिए सपोज इफ आई एम गोइंग टू पुट x इक्वल टू 7 इज हियर, सपोज हाउ कैन फाइंड द सॉल्यूशन दैट वी विल डिस्कस. x इक्वल टू 7 अगर मैंने यहां रखा तो लेफ्ट हैंड साइड में LHS, तो क्या देखिए x प्लस 2, तो वी आर पुटिंग 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9. और राइट हैंड साइड आपको कितना 10. तो हियर इज द लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. दोनों बराबर नहीं आ रहा है. दिस इज 9, दिस इज 10. इसका मतलब देयरफॉर दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन. ये इसका सॉल्यूशन नहीं है. लेकिन जो भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, जैसे मान लीजिए मैंने रखा सपोज x को 12 रखा, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है x प्लस 2. सपोज आई एम पुटिंग 8 इज हियर, तो यू आर पुटिंग 8 प्लस 2 यू आर गेटिंग 10. लेफ्ट हैंड साइड में 8 रखा तो 10 आ रहा है. RHS इज ऑल्सो 10. इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल आ गए. इट मीन्स क्या होगा, देयरफॉर x इक्वल टू 8 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. अब ये यहां पर ये इक्वेशंस गिवन है एंड द वैल्यूज आर गिवन. वी वांट टू चेक कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं. दैट वी हैव टू चेक. देखिए कैसे, लुक एट हियर. फर्स्ट वी आर टेकिंग, सी नाउ, फर्स्ट वी आर टेकिंग दिस वन. लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है x प्लस 4. You are supposed to put x equal to 2, तो क्या हो जाएगा 2 plus 4 that is 6. And RHS you are getting for this one is already 12. So here is LHS is not equal to RHS. दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, तो therefore x equal to 2 is not a solution of this equation. ये इसका solution नहीं है. Similarly you can check for B. इसके लिए देखिए x इज इक्वल 4, लेफ्ट हैंड साइड में रखो. LHS हमारा क्या है 4x माइनस 3. x इक्वल 4 है, यू हैव टू पुट दिस x इक्वल 4, तो 4 इंटू 4 माइनस 3, 4 4 जो 16 माइनस 3 यू आर गेटिंग 30. एंड हियर इज द RHS इज 10. सो हियर इज 13 इज नॉट इक्वल टू 10. देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 इज नॉट अ solution. अब नाउ यू हैव टू चेक फॉर दिस वन. थर्ड के लिए करिए. इसमें LHS क्या है, LHS इज 2x प्लस 4, 2x प्लस 4. एंड व्हाट इज योर x 5. x को 5 रखो, 2 इंटू 5 प्लस 4, तो यू आर गेटिंग 10 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 14. सो LHS यू आर गेटिंग 14, RHS इज ऑल्सो 14. तो therefore LHS is equal to RHS. तो if you are putting x equal to 5, both the sides are coming equal, दोनों साइड इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब therefore you can write down x equal to 5 is a solution of this given equation. Have a look. Okay, now we will discuss the trial and error method. Means हम इसका इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना चाहते हैं. मींस वी वांट टू नो द वैल्यू ऑफ x ऑन विच द लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. में हम x की वैल्यू सर्च करेंगे जिससे x लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आए. मींस x की वैल्यू हम क्या रखें जिससे ये लेफ्ट साइड इस राइट के बराबर आ जाए. तो वन ऑफ द मेथड इज देयर टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. सोल्यूशन निकालने का एक तो है ट्रायल एंड एरर मेथड, इसको हिट एंड ट्रायल भी बोलते हैं. मींस
अपनी मर्जी से रखते जाइए और जब तक रखिए x की वैल्यू जब तक दोनों साइड बराबर नहीं आ जाते। एनी नंबर यू कैन पुट, इट्स अप टू यू ओनली। तो इसमें 4-4-5 कॉलम्स बनाओ, इक्वेशन लिखिए, वैल्यू ऑफ x, लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज यू नीड हियर इज कैलकुलेशन, आपको यहाँ कैलकुलेशन करना है, राइट हैंड साइड इज फिक्स्ड है 17, then 17, then 17, you can write on likewise there. And if it is जैसे ही यस आता है, जहां भी यस आएगा x का वैल्यू रखने के बाद, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज हियर, whenever you get equal to 17, तो you will write a yes, जहां भी यस होगा that will be your solution. तो ओन कन्वीनियंस के लिए एनी नंबर यू कैन पुट इट, इट्स अप टू यू, अपनी मर्जी है। जैसे मैं रखूं x0, ये x को 0 पे चेक करो, देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 5x + 2, तो इसमें सीधा रखिए 5x0 + 2, इसको सॉल्व करेंगे 5 × 0 0 + 2, तो यू आर गेटिंग 2 इज हियर। तो इफ यू आर पुटिंग x वैल्यू 0, अगर हमने x वैल्यू 0 पुट किया यहाँ तो यू आर गेटिंग 2 एंड दिस इज 17, तो इट मींस नो, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये x वैल्यू 0 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं बिंदास, जो मर्जी है बिंदास रखिए, बट यू हैव टू सच दैट वैल्यू, दैट नंबर जो लेफ्ट हैंड साइड को विल मेक द इक्वल टू राइट हैंड साइड। एनी सपोज मैं रखूं 1 रखने पे देखो क्या आता है, 5 × 1 + 2, 5 × 1 is 5 + 2, you are getting 7, and which is not equal to this 17. So again you can say the no. Again you can say the no. See, now you can put x equal to -1, 5 × -1 + 2. So 5 × -1 is -5 + 2, you are getting -3. This is 17. So again it is no. You are not getting this one is there only. So you can put x equal to 2, 5 × 2 + 2. So 5 × 2 10 + 2, that is 12. Again it is no. You can put, suppose x equal to 3 you are going to put 5 × 3 + 2. 5 3 is 15 + 2, you are getting 17, and this is also the 17. So yes, it means therefore you can say this x is equal to 3. This is your solution. So therefore x is equal to 3 is a solution of this given equation. So these are the value, any number you can put here only. This is the trial and error method. By using the trial and error method, any value of x you can put here only, any value, and you will search the value of x which makes the left hand side is equal to right hand side. Left hand side right hand side की equal आ जाती है, जिस value पर आएगी that is your solution. So this is your solution is here only. Have a look. Yes, now the solving an equation. How can you solve the equation? Equation कैसे solve करेंगे? तो पहला मेथड है कि हम उसमें एडिशन करें, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, दैट यू कैन डू। एंड दूसरा है बाय ट्रांसपोजिंग, सिंपली वी आर गोइंग टू ट्रांसपोज। अगर मुझे एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से करना है तो देखिए कैसे। यू वांट टू नो द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। वी आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स इज हियर। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 by 1 वी विल डू। पहले दिस नंबर 2 को यहां से सब्ट्रैक्ट करिए, 2 दिस मस्ट बी रिमूव। इस 2 को रिमूव करने की व्हाट वी विल डू, यू कैन सब्ट्रैक्ट 2 दिस साइड as well as this one. Same operation we will do. So subtract 2 from both the side. Same operation करेंगे, subtract 2 from both the sides. Same operations we are supposed to do is there. ऐसा नहीं कि we are going to subtract 2 from here only, from left hand side. We are not subtracting here. Value will be changed. तो देखिए 1 by 1 एक एक टर्म को यहां से खत्म करिए, except x. तो 1 4x + 2 -2 इधर किया, -2 इधर भी करिए। देखिए +2 और -2 से कैंसिल हो गया। हियर यू विल गेट 4x एंड 10 - 2 is 8. सी अगर ये -2 होता तो टू रिमूव दिस 2 फर्स्ट कांस्टेंट ओनली वी आर सपोज टू ऐड। अब देखिए 4 हटाना है क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन x ओनली, तो 4 हटाएंगे कैसे, वी आर सपोज टू डिवाइड बाय 4। तो डिवाइडिंग बाय 4 बोथ द साइड, डिवाइडिंग बाय 4 बोथ द साइड्स दैट यू कैन डू। तो क्या हो जाएगा, देखिए 4x over 4, सेम ऑपरेशन वी विल डू। 4 से 4 गया, यू विल गेट x, और 4 से गया 2, तो दिस इज 2। तो दिस इज योर द सॉल्यूशन, इज योर आंसर। तो
So one of the methods, one by one, you must remove these numbers from here by adding, subtracting, dividing, multiplying, whatever it is there only. One more example भी बैठे. लेकिन अगर मैं ट्रांसपोजिंग से करता हूं तो इट्स वेरी सिंपल. पहले कांस्टेंट को यहां से ट्रांसपोज करिए. वी विल ट्रांसपोज. तो इफ यू आर गोइंग टू ट्रांसपोज मीन्स वी आर सेंडिंग दिस टू ऑन दिस साइड. तो अगर वी आर सेंडिंग एनी वन ऑफ द नंबर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड तो उसका साइन ऐसा ही दिए चेंज होगा. ये साइन चेंज होगा. इफ इट इज प्लस है तो विल चेंज इनटू द माइनस, और माइनस है तो इट विल चेंज इनटू द प्लस. अब देखिए, इफ दिस 2 + 2 इज हियर, यू हैव टू चेंज ट्रांसपोज दिस 2 ऑन द राइट हैंड साइड. तो +2 क्या होगा, माइनस हो जाएगा. देखिए 4x = 10 - 2. अगर ये -2 होता तो +2 हो जाता. यू हैव टू ट्रांसपोज. You will get 4x = 10 - 2 is 8. Now you want to find out the x. So why this 4? You have to divide here. X = 8/4. 4 2 जब cancel कर दीजिए, you will get x = 2, and this is your answer. So whatever the answer you will getting, same will be here only. So by transpose you can do, or by the traditional method you can do by subtracting, adding, dividing. Anyhow you can do. Just one more question I am taking here only. सपोज मान लीजिए इस इक्वेशन की जगह पर कुछ ऐसा होता. सपोज 1/3 x + 1/4 = 1. सपोज ये होता. तो पहले हम क्या करेंगे, इस 1/4 को यू हैव टू रिमूव. तो क्या करेंगे, वी आर सपोज टू सबट्रैक्ट 1/4 बोथ द साइड. दिस सेम ऑपरेशन वी विल डू. दिस ये आपका आउट हुआ. ये बचा 1/3x. ये बचा 1 - 1/4. तो हियर यू हैव टू टेक द एलसीएम फर्स्ट. तो एलसीएम यहाँ लिया तो क्या होगा, 4. 1 से 4, 4 × 1 4, -1 4 से 4 गया 1 × 1. तो दिस इज यू आर गेटिंग 3/4. तो व्हाट यू आर गेटिंग इज हियर 1/3 x = 3/4. हमने 1/4 पहले सब्ट्रैक्ट किया. अब वी वांट x. तो इसका मतलब ये हमें रिमूव करना है. इट मींस 3 से इधर मल्टीप्लाई करो, 3 से इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये 3 विल बी रिमूव्ड. मल्टीप्लाई बाई 3. तो देखिए 1/3x को यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 3 दिस साइड. सेम ऑपरेशन जो इधर करेंगे वही इधर करेंगे. 3/4 × 3. इस 3 से ये 3 कैंसिल. तो आपको क्या क्या मिला, x = बट दिस विल मल्टीप्लाई, दिस इज 3 एक्चुअली over 1. तो 3 3 = 9/4, and this is your answer. Likewise you can do. Have a look. See, now this word problem I am taking, इसमें क्या है, पहले you have to form an equation, then you have to solve it. पहले equation बनाना पड़ेगा, then you have to solve it. देखिए क्वेश्चन, the sum of 3 times a number, किसी भी नंबर का 3 times, add 11 plus add is 32. You have to form an equation. Simple. तो क्या करेंगे, assume करिए let the number be x. Suppose your number is x. Now what you are saying, 3 times a number and 11, and means plus होगा 11 is 32. So this is an equation. So first of all आपको क्या है, you have to form an equation first. Now you want to solve. तो by transposing you can do, without transposing you can do. अगर without transposing करेंगे तो you have to subtract 11 first. Subtracting 11 from both the sides. दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करिए तो you will get 3x plus 11 minus 11 32. जिससे ये क्या, 3x = 32. Now you want the value of x. तो इस 3 को हटाएंगे, तो 3 को हटाने के लिए we will divide. Dividing by 3 both the side. 3 both the side. So that is 3x/3 is equal to 32/3. 3 से 3, you will get x = 32/3, and this is your answer. Simple, you can do that. Sorry, यहाँ भी 11 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये चेंज हो जाएगा. So this is become a 21, and this is your 21. So this will become equal to 7. Because जो operation, whatever the operation we are doing here, same operation you are supposed to do here only. Same operation. You are subtracting here. Here is also subtract. So 32 minus 11 is 21. So 3x = 21. X will be equal to by 3. Say 3 7 jump. You can cancel. So 7 is here. अगर by transpose you want to do,
देखिए 3x plus 11 is equal to 32 is here. You can transpose. So you will get 3x is equal to 32. 11 you will transpose on the right hand side. So sign will change. Minus. So 3x is equal to, this is your 21. You will subtract. 21 is there. Now x is equal to, you have to divide by 3 is there. इस x के साथ जो भी वैल्यू है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं. 3 7 जा. So therefore x is equal to 7. So therefore number is, what is your number? Number is 7 and that is your answer. So you should be very careful here only if you are doing the calculation. Have a look.